Good morning, students. Today we will discuss formal and informal communication network. Students, as we already know that communication is a two-way process. Uh, it connect people and you can say organization. And in this process, two communicator understands their information, ideas, news, feelings, etc. And we know that it is based on a mutual understanding, because when a speaker exchange his ideas, in return he get feedback from the receiver, so that it is you can say it is encoding and decoding process, right? And now we say that in business and or in personal life, communication has certain goals such as giving ideas, receiving ideas, exchange information, signal message through appropriate channels. And in business, communication has two types: internal and external communication. First of all, we discuss internal communication. Internal communication, when the exchange of ideas, information, and messages occur within an organization. You can say within an organization, not outward this organization. It can be through phone, through email, through notice, एट्सेट्रा। जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो हमारे कॉलेज में ही शेयर होती है, अगर हम फॉर एग्जांपल लें, तो जो अगर वो कॉलेज से बाहर पास नहीं हो रही है, इट मीन्स वो क्या है, इंटरनल कम्युनिकेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक फर्म का, एक किसी फैक्ट्री का, उसी के जो एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर के बीच का कम्युनिकेशन है वो होता है इंटरनल कम्युनिकेशन। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन नेक्स्ट, when we exchange informations out of organization, such as with customers, distributors, salesmen, competitors, investors, community representative, etc. These are external communication. When a firm communicate uh, with other firms, other factories, this is called external communication. Okay. On the basis of an organization structure, the message can be conveyed in two ways, and these are formal and informal communication. Now, first of all, we discuss formal communication. Students, we have already know that formal communication is a systematic has a systematic process. In this communication system, it occurs in a formal way. We has to certain rules and regulation to achieve the organizational objective. Formal communication हैज़ ए वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर, बिकॉज वी हैज़ टू फॉलो सर्टेन, जैसे मैंने कहा कि कुछ रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके हमें उस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन को फॉलो करना होता है, एंड इट इज़ इनफ्लेक्सिबल इन नेचर। उन रूल रेगुलेशन को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। दिस स्ट्रक्चर कैन बी चेंज्ड एज इट मेक श्योर द स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी। इसको हम चेंज, इस कम्युनिकेशन प्रोसेस को हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। दिस चैनल इज ऑल्सो नोन एज वर्टिकल कम्युनिकेशन, विच कैन फर्दर बी डिवाइडेड इंटू 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डायरेक्शन। और इस फॉर्मल कम्युनिकेशन को इसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स से डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, टॉप मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट, सॉरी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। अपवर्ड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जो एम्प्लॉयर से एम्प्लॉयज़ को होता है, अपवर्ड कम्युनिकेशन जो एम्प्लॉयज़ से एम्प्लॉयर को जाता है, ओके। एंड हॉरिजॉन्टल communication is another part of this type of communication. Now first of all we discuss downward communication, okay। downward communication, ये हमारा क्या है, डाउनवर्ड है।
डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होगा, टॉप मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट एंड देन लोअर मैनेजमेंट। मीन्स जो एम्प्लॉयर है जिसने उन लोगों को काम पे लगा रखा है, यू कैन से एक फर्म का जो मेन जो एमडी होता है, उस एमडी के थ्रू जो उसके वर्कर्स के साथ, जो नीचे उसके जैसे उसका मैनेजर आ गया, उसके बाद उसके कुछ एम्प्लॉयज़ आ गए, उसके वर्कर्स आ गए, उनके साथ जो कम्युनिकेशन है वो हमारा क्या होता है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, सो लेट्स सी डेफिनेशन। Communication that follows from a higher level to the lower level in an organization is known as downward communication. In other words, this communication takes place from superior to subordinate in a चेन ऑफ ऑर्डर्स इज ऑल्सो नोन एज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। वही कि जैसे कि कोई एक मैनेजर है या जो एम्प्लॉई है या जो फर्म का जो मेन डायरेक्टर होता है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को जो ऑर्डर देता है, उन ऑर्डर की फॉर्म में, जो चेन ऑफ ऑर्डर की फॉर्म में जो कम्युनिकेशन आता है वो होता है हमारा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अब जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि एवरी टाइप के कम्युनिकेशन के कुछ एक गोल्स होते हैं, कुछ एक ऑब्जेक्टिव होते हैं, और उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करने के लिए ये कम्युनिकेशन होता है। अब एडवांटेज ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अब हम करते हैं कि इस कम्युनिकेशन के एडवांटेज क्या है। सबसे पहले इसका एडवांटेज क्या आएगा, इट इज़ यूज़फुल फॉर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए यूज़फुल क्यों होगा, जब एक एम्प्लॉई का अपने एम्प्लॉयर के साथ कम्युनिकेशन है, तभी वो अच्छा कम्युनिकेशन हो पाएगा, तभी वो अपनी रूल्स रेगुलेशन, अपने गोल्स को अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छे से समझा सकता है ना। तो ये कहता है कि एक अपने गोल्स को अचीव करने में काफ़ी हेल्प करता है, ताकि वो अपना विज़न है, मिशन है, वो अपने एम्प्लॉयज़ के सामने रख सके। दूसरा क्या है, गुड ऑर्गेनाइजेशन। ये किस में हेल्प करेगा हमें, गुड ऑर्गेनाइजेशन में। अब अगर मैनेजमेंट अच्छे से, कंपनी का एक फर्म का मैनेजमेंट अच्छा होगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छी होगी। ये कंपनी की जो ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी को बहुत ही स्मूथली तरीके से चलाने में भी ये हेल्प करता है। ओके, थर्ड इट इज़ यूज़फुल फॉर एम्प्लॉयज़, वेरी इजी, यूज़फुल फॉर एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ के लिए यूज़फुल कैसे है, एम्प्लॉयज़ का टाइम टू टाइम अपने जो एमडी के साथ या उनके जो ओनर के साथ अगर कम्युनिकेशन होएगा, तो टाइम टू टाइम उनको कंपनी की पॉलिसीज़, कंपनी के प्रोसीजर, सब के बारे में उनको पता चलता रहेगा। ठीक है, तो ये सब कैसे पॉसिबल होगा, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के थ्रू।